دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھٹیارن کا بیٹا ابو الشیطان ابن ملزم ہمارے علماء کرام کو کال کر کر کے رشید گنگوہی کے وقوع کذب والے فتوے کو طلب کرتا رہا، اور اب جب وہ منظر عام پر آ گیا ہے تو اب ان میں دیوبندیت میں جو ہے ماتم چھا گیا ہے۔ دیوبندیت جو ہے ایسے ہو گئی جیسے کہ ان پر مری پڑ گئی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ ثابت کرو کہ گنگوہی کا ہے، جبکہ اس پر گنگوہی کے دستخط مہر ساری موجود ہے، اور وہ فتویٰ ہمارے پڑوسی ملک کے کئی علماء اکرام نے ساجد کوڈو کو ثابت کر بھی دیا ہے۔ ساجد کوڈو اس وقت روپوش ہو چکا ہے۔ اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے اس بھٹیارن کے بیٹے نے ہمارے ایک مفتی انجم رضا حقانی صاحب قبلہ کو کال کیا اور ان سے بات کی، لیکن اس نے بات کرنے کے بعد اس ریکارڈنگ کو کاٹ چھانٹ کے اپنے چینل پر چلا دیا، یعنی پوری ریکارڈنگ اس نے اپنے چینل پر نہیں چلائی، جو اس نے خیانت کی۔ اور یہ جو ان کی عادت ہے، جو اس کے اکابروں سے وراثت میں اسے ملا ہے، اسی کو اس نے اپناتے ہوئے یہ کام کیا۔ اب سامعین حضرات، وہ بات کیا ہوئی تھی وہ آپ پوری اس ریکارڈنگ میں سماعت فرمائیں گے، اور اس آڈیو کو پوری سماعت فرمائیں، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔ ہلو، جی خیریت سے ہیں؟ کون بول رہے ہیں صاحب؟ میں ارمان بول رہا ہوں۔ ارمان جی، اچھا، فرمائیں۔ مفتی انجم رضا حقانی صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی بول رہا ہوں۔ خالی حضرت، یہ جو حسام الحرمین ہے نا، حسام الحرمین، ہاں بتائیں۔ اس میں جو لکھا ہے قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی وقد طبعت مرارا في بمبئی وغيرها معارضها انما يكذب الله تعالى بالفعل ويصدق انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنكروه الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر۔ تو یہ جو فتویٰ گنگوہی صاحب کی طرف منسوب کیا ہے، یہ کہاں ملے گا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو۔ آپ کا نام ارمان ہے؟ ہاں، کتنی بار بتاؤں؟ اچھا، کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ میں فارغ نہیں ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ حوالہ کہاں ملے گا؟ پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ فارغ التحصیل ہیں یا نہیں؟ نہیں ہوں۔ نہیں فارغ ہیں؟ ہاں، تو یہ حوالہ بتا دے کہاں ہے۔ کس چیز کا حوالہ چاہیے آپ کو؟ ابھی میں نے حسام الحرمین کی عبارت پڑھی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے گنگوہی صاحب کی طرف سے جو فتویٰ منسوخ کیا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ تو یہ آپ کس مسلک اور کس مشرب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بس حوالے کا مطالبہ۔ ظاہر سی بات ہے، سوال کیا ہے آپ نے تو اس کی ضرورت ہے ہی۔ پہلے آپ واضح فرمائیں، اپنا مسلک ظاہر فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ جواب مطمئن بخش دیا جائے گا، اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو میں منہج دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہاں، تو ایسے بتائیے نا کہ میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے بتا دیا، تو آپ نے کہا ہے کہ مطلب بتانے کے بعد آپ جو ہے مدلل جواب دیں گے۔ ہاں، اب آپ کیونکہ بتائیے حضرت دیکھیے قرآن کریم میں آیا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے، قرآن لا تو شک جب اعلیٰ حضرت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک فتویٰ ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے؟ ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، حسام الحرمین میں جو آپ یہ عبارت پڑھ رہے ہیں حسام الحرمین شریف کی، جی، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیجئے، میرا واٹس ایپ نمبر یہی ہے۔ دوسری چیز ابھی بھیج رہا ہوں۔ ہاں، دوسری چیز آپ کا مطالبہ جو ہے حوالے کا، ٹھیک ہے، تقریباً یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اور حوالہ آپ کب سے مانگ رہے ہیں؟ ابھی سے مانگ رہے ہیں یا 100 سال پہلے سے مانگ رہے ہیں؟
100 साल पहले से। 100 साल पहले से। आपकी उम्र शरीफ कितनी है? जी आपकी उम्र कितनी है? नहीं, मैं ये वाजे नहीं करता, मेरी ये जो है उसूल है। नहीं तो 100 साल से आप कैसे हवाला मांग रहे हैं? आप किस बयानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे उलमा मांग रहे हैं ना, मैंने तो ये ऐसे थोड़ी बोलिए ना कि मैं हमारे उलमा मांग रहे हैं। आपने कहा आपने कि मेरी उम्र पूछी तो मैंने मेरी उम्र का जवाब दिया है। नहीं नहीं, आपने कहा कि हम 100 साल से मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो 100 साल से आप मुतालबा कर रहे हैं या आपके उलमा मुतालबा कर रहे हैं? पहली चीज ये वाज़ेह होनी चाहिए। दोनों मुतालबा कर रहे हैं, ठीक मतलब है। हमारी पूरी जमात मुतालबा कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इस पर मुतालबा आप कर रहे हैं वाकई तौर पर सही मानो मर, तो मुतालबा करना कोई बुरी चीज तो है नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल 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 जी सही जी बात है, मुतालबा करिए आप, कोई मसला नहीं है। जी मगर जी। मुतालबा फोन पे नहीं होता है अच्छा अच्छा, ये। कहाँ? नहीं नहीं, आप सामने से मुलाकात कीजिए, आपको इस फतवे का जवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और दूसरी चीज ये है कि जिसको आप देखने और तहरीरी फतवे की बात कर रहे हैं, आईनी और बिलफेली जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये फोन पर बात ये मैंने करके आपको हवाला भेज दिया है, सुनिए मेरी बात, मैंने आपको हवाला भेज दिया है हाँ इबारत को हाँ उसामुल हरम की। देखिए, अगर आपसे कोई मसला पूछता है, कोई हवाला फतावा रिजविया का हो, हदीस शरीफ का हो, कुरान करीम का हो, हाँ हाँ। तो अगर आपसे हवाला पूछता है तो क्या आप उससे कहेंगे कि सामने आकर बैठ कर मुनाजरा करो या फिर हमें सामने बैठ कर पूछो? फोन पर कोई भी ऐरा गैरा आकर के सवाल करने लगे तो उसका जवाब थोड़ी ना दिया जाएगा तुरंत फौरी तौर नहीं पर, दिया क्योंकि जाएगा। साजिशन भी बहुत सारे लोग बदतमीजियां करते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हर किसी के सवाल का जवाब दिया जाए। का मुताबिक, क्योंकि आपकी ये सवाइनुल हिंदिया है, इसमें लिखा है हुसामुल हरमैन किताब ला रईब फीह। तो जब आपकी किताब के ऊपर आपका ये अकीदा है कि ये किताब ला रईब फीह है, तो फिर आप किसने इसका ला हवाला रईब लिखा है वो भी हवाला भेजिए आप हमें जरा। ये भी भेज दिया मैंने। हाँ वो भी भेजिए। सवाइनुल हिंदिया में लिखा है, ठीक है? तो हवाला मिलेगा ये हवाला कहाँ मिलेगा? और ये रद्द शहादत साकिब है। पहले जो आपने हवाला भेजा है मैं उसको देख लेता हूँ कि आप ही किताब है या आप ही रद्द शहादत साकिब में लिखा है, सुनिए, रद्द शहादत साकिब में लिखा है कि आला हजरत का कमाल ये होता कि ये तो बियाई नहीं, जो इनकी इबारतें हैं ये इनकी किताबों में मौजूद है, जो आला हजरत ने नकल की है। तो फिर ये फतवा कौन सी किताब या फिर कौन सी मिलेगा? और ये अशरफ सियालवी साहब की मैंने एक किताब भेजी आपको, उसमें लिखा है अपने अपने अकीदे की तशरीह का हक खुद मुताल्लिक़ फरीक को है, दूसरा फरीक ये फतान नहीं कह सकता कि तुम्हारा ये अकीदा है। जरूरी थोड़ी ना है कि हर आदमी की वजाहत खुद ही करेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जाहिर होती हैं और जाहिर व बाहिर चीजों पर वजाहत की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर रुजू की जरूरत होती है। और जो चीजें जाहिर, एक मिनट रुकिए मेरी बात सुनिए। उसके बाद फतावा रशीदिया के अंदर जो है लिखा हुआ है कि जो ऐसा अकीदा रखे वो काफिर है, कतअन काफिर है, कि जो अल्लाह ताला के ऊपर अकीदा रखे कि अल्लाह झूठ बोल चुका और बोलता है तो वो काफिर है। अच्छा, मैंने चारों हवाले भेज दिया। आप रशीद अहमद गंगोही को क्या मानते हैं? हम अपना जो है वक्त मानते हैं, अपना काबिल मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जब आपने कहा कि अभी आपके कौल के मुताबिक कि आप अपनी वजाहत खुद पेश करेंगे, तो फिर आप पेश करते रहिए, आपकी वजाहत को तस्लीम थोड़ी ना किया जाएगा। तो फिर आपके उलमा ने लिखा है ना कि अपने अपने अकीदे की तस्वीर कहा खुद मुताल्लिक़ फरीक को है, हमारे उलमा ने लिखा है, लेकिन एक उसूल है, कायदा है, बगैर कायदे के तो आप नहीं चल सकते हैं ना। अगर उसूल जाहिर है, एक मिनट, अगर उसूल जाहिर है और ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, फैक्ट है कि जब इंसान का कुफ्र जाहिर हो जाए, ठीक है, किसी एक रूह से भी जाहिर हो जाए, तो वो अपना नजरियात वो उसमें तावील करेगा। जब कुफ्र सरीह जाहिर हो जाए तो उसमें तावीलात की गुंजाइश पाई जाती है। आप क्या पढ़े लिखे हैं? तो पहले तो फतवा तो साबित करो, कुफ्र तो साबित करो। फतवा क्या साबित करना है? पहले कुफ्र तो साबित करो, उसके बाद तावील, उसके बाद वो सब होगा ना। कुफ्र साबित करने के लिए कितनी किताबों में उनके कुफ्रियात जो लिखे हुए हैं उसमें बताने की क्या जरूरत है? ये दिखा दो, कहाँ लिखा है ये जो आपके लिखा है? एक मिनट में बताइए। आपने ठीक से पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। ठीक से पढ़ा है? पहले ठीक से उसका मुताला कर लीजिए, मुताला करने के बाद फिर हमसे गुफ्तगू आपने तो खुद अपनी हुसामुल हरमैन का मुताला नहीं किया है। आपको नहीं मालूम है कि ये किताब आपको किताब ला रही है? मैंने ये कहा ये भी नहीं मालूम है कि ये इबारत हुसामुल हरमैन में लिखा ही नहीं है। गलत बयानी मत करो, झूठ मत बोलो।
तुमने कहा कि ये इबारत भेजो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये इबारत कहाँ है? हुसामुल हरमैन में लिखा नहीं, गला ढिठाई मत बतियाओ, बात करो। मैंने कहा सवारिनुल हिंदिया में जो लिखा है तुम्हारा अकीदा है कि ये किताबुल ला रही बफी है, तो फिर तुम्हें ये मालूम ही नहीं तुम्हारा ये अकीदा है? अभी तुमने ये बयान किया, ये बोला है कि हुसामुल हरमैन में लिखा, हुसामुल हरमैन में लिखा नहीं, किस बयान इसका मतलब? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अभी तो ये बोला है, बाद में तुमने उस किताब का हिंदिया का नाम लिया है। आमीन बोलो, है आमीन बोलो। क्यों बोलेंगे भाई? झूठ आप बोल रहे हो, हम क्यों बोलेंगे? इस पर नहीं है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जो झूठ बोलेगा वो जाहिर सी बात है, जो झूठ बोलेगा उसको पर लानत होगी। लेकिन पहले तुमने जो है ये बात बोली है, गला ढिठाई, सुनो, गला ढिठाई मत बात करो, सच्चा साबित नहीं करो। आला हजरत को सच्चा साबित करने की जरूरत नहीं है, आला हजरत को सच्चा साबित करने की जरूरत नहीं। आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात के अंदर अज़हरु मिन शम्स की तरह उनकी सच्चाई, उनकी सदाकत, उनकी महारत, उनका इल्मी मेयार बुलंद है, जाहिर है, बाहिर है, हर किसी ने माना है। ये मालूम हो रहा है कैसे तुम्हारे आला हजरत क्या रहे यार, अजीब आदमी हो, बात करने का सलीका नहीं है तुम्हारे आला हजरत। तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई की क्या हैसियत है, बात कर रहे हो? क्या इल्मी बिस्किट बेच रहा है? खाना भवन की नाजायज औलाद, सुनो कान खोल करके, इधर सुनो, चिल्लाओ मत, तुम्हारी वीडियो बहुत आई है मेरे पास। ओए खाना भवन की नाजायज औलाद रशीद गंगोई के पालतू, सुन मेरी बात, कान खोल करके सुन मेरी बात, इधर सुन कान। बदतमीजी नहीं, पहले बात तो सुन, तू बात ही नहीं कर रहा है, तेरे बाप की औकात नहीं बात करने की, पहले बात तो कर। बदतमीजी कर रहा है, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग डालेगा, पहले मेरी बात तो सुन ले। बात सुन ही नहीं रहा, बेवकूफ का बच्चा। सुनने बैठा हूँ, मुझे बस हवाला चाहिए। हवाला तुझको दूंगा ना मैं, हवाला लेना तू हवाला ले, लेकिन सुन पहले मेरी बात सुन। पहले किसी की शान में गुस्ताखी करने से पहले होश में बैठ के बात कर। अरे किसकी शान? मैं तो तुम्हारे आला हजरत की शान में गुस्ताखी का हूँ, वो तो है ही उसके लायक। तो तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई गोबर खाने वाला, रशीद अहमद गंगोई बिस्किट बेचने वाला, चटनी बना के बेचने वाला, फतावा रशीदिया में उसने नौटंकी किया है। अरे उसने बिस्किट बेचा, चटनी बेचा, इमली बनाने का तरीका उसने खाना बनाने का तरीका रशीद अहमद गंगोई ने बनाया है। फतावा रशीदिया में उसने क्या किया है? उसने जो है खाना बनाने का तरीका बताया, उसको आता क्या है? बिला वजह की बातें कर रहा है, जाहिल कहीं का, तमीज नहीं है किसी चीज की, बात कर रहा है फजूल की। रशीद अहमद गंगोई क्या बेच रहा है? बिस्किट बेच रहा है बना करके रशीद फतावा रशीदिया में, यही उसका इल्मी मेयार है। चटनी बनाने का तरीका बता रहा है उसके अंदर, वो है चटनी बनाने का तरीका बता रहा है। और फतावा रशीदिया को सुन, थाना भवन की नाजायज औलाद इब्लीस के नायब, सुन ले पहले मेरी बात सुन। फतावा रशीदिया सिर्फ और सिर्फ कचरा और डिब्बा और उसके अलावा कुछ नहीं, उसमें कुछ है नहीं। पहले बात सुन ले कान खोल करके, सुन थाना भवन की नाजायज औलाद, कान खोल करके सुन ले। अगर तेरी माँ ने वाकई तुझे जायज बच्चा पैदा किया है तो मेरी बात सुन। अरे कुत्ते की तरह भूखना बंद कर, पहले बात सुनने की सलाहियत पैदा कर। हुसामुल हरमैन का हवाला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी अंजुम रज़ा हक्कानी तेरे बाप दादाओं की नस्लों पर ऐसा गाड़ेगा ना कि तेरी नस्लें इंशाल्लाह भोगती रह जाएंगी, कुछ कर नहीं पाएंगी। और तू जिस फतवे की बात कर रहा है, तुझे वो फतवा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे दूंगा, अभी इसी वक्त दे दूंगा। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मेरे सवालों का जवाब दे। फतावा रशीदिया में तेरे बाप दादाओं ने सिर्फ बिस्किट बनाया है, चटनी बनाया है, खाना पकाने का तरीका बताया, और क्या किया उन्होंने? बता मुझे, एडिट करके यूट्यूब पे डालेगा। अगर अपने बाप की औलाद है ना तो जितनी बातें मैंने डाली है वो सब डाल। गुस्ताखों का पुलंडा है तेरे बाप के अंदर, सारा जितना तुम लोगों ने किताबों में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखियों की बातें की है। और क्या किया तुम लोगों ने? बदतमीजियां की हैं। अब बोलूंगा, तुम्हारा बाप जो है, तुम्हारा बाप अशरफ अली थानवी, उसने क्या किया है? उठाकर किताबें देखो, सिर्फ खुराफात, मुगल्लजात और कुफरियात उनकी किताबों में भरा हुआ है। अब बातें कर रहा है आला हजरत पर। आला हजरत के पैरों की जूतियों के कचड़े के बराबर तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे अकाबरीन की औकात नहीं है। थाना भवन के पिल्लू, सुनो दगा की दाल है या जूझ की है या इसमें, सुनो मेरी बात सुन लो। देवबंद की वजाहत सुन लो।
देवबंद की वजाहत सुन लो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, तुम बदतमीज लोग हो। तो गालियां भरी पड़ी, तो यही हाल तुम्हारी किताबों में गालियां भरी पड़ी हैं, हुजूर के इल्म गैब पर इतराज, हुजूर के इल्म गैब पर इतराज, हुजूर की शान और शौकत में गुस्ताखियां, सिर्फ और सिर्फ थाना भवन की नाजायज औलादे, क्योंकि थाना भवन और देवबंद ये सब शैतानों का अड्डा है, और शैतानों के अड्डों में सिर्फ शैतानी काम होते हैं। वहाँ पर बिस्किट बनाना, खाना और उल्टी सीधी बातें करना, उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। बात करना, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझसे बैठ करके बात कर लो, ये बदतमीजी करके रिकॉर्डिंग करके डालोगे, इसके अलावा तुम्हें क्या आता है? बात करने की तमीज है? इबारत पढ़ने की तुम्हें तमीज नहीं, इबारत गलत पढ़ रहे हो, जाहिल कहीं के बदतमीज आदमी। तुमको कोई किसी अरे इबारत पढ़ने की तुमको तमीज नहीं है, तुम आके बात कर रहे हो हजरत की बात पर। तुम्हारे बाप, सुनो, तुम्हारे बाप देवबंद के जितने भी हैं, तुम्हारे जितने भी बाप हैं, इबलीसी बाप, उन सारे बापों को मेरा खुला चैलेंज, अगर एक बाप की औलाद हो, नुत्फे ना तहकीक नहीं हो, नुत्फे मा तहकीक हो, और एक माँ और एक बाप की ओरिजिनल औलाद हो, तो सुनो, कान खोल करके बैठ करके बात कर लो सामने आकर के। ये फोन पर कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो, ये थाना भवन की नाजायज औलादों का काम है, ये सब काम बंद कर दो। अगर इल्मी मकाम है तुम्हारा कुछ, तो सामने आकर के बैठ करके बात कर लो, जहाँ बात करना है। देवबंद में बात करोगे, अरे तुम क्या बात करोगे? जाहिल कहेंगे, बदतमीज, फोन काट देते हो, बदतमीजी कर देते हो। फोन क्यों काट रहे हो भाई? फोन क्यों काट रहे हो? बातें नहीं सुनी जा रही हैं, फोन क्यों काट रहे हो? ये जो तुमने किताबें भेजी हैं, इन किताबों पे जो पब्लिशर है, जिन्होंने इसको शाये किया है, उसका ठीक से एड्रेस तक नहीं लिखा हुआ है। तुम लोग जो है मनगढ़ंत किताबों को उठा करके जिस तरीके से चाहते हो छाप करके एडिटिंग करके भेज देते हो, और ये पोस्टर निकाल के मत भेजो, पोस्टर, और ये फतावा रशीदिया के पोस्टर मत भेजो, ठीक है? जो पुरानी फतावा रशीदिया है, जो तुम्हारी फतावा रशीदिया पुरानी है, वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, सुनिए। और फतावा रशीदिया मेरे पास ओरिजिनल रखी हुई है, वो भी पुराना एडिशन, एडिट की हुई मत भेजो मेरे पास। एडिट की हुई मौत आ रही है तुम्हें उठाने में? मौत नहीं आ रही है, तुम्हारा जनाजा उठ रहा है, तुम्हारी मैयत हो रही है। तुम रशीद अहमद गंगोही का ताबूत उठाए फिरो, और अशरफ अली थानवी के कुत्ते की मदार पे जा, जिसका पता नहीं है, जिसको तुम जो है हकीमुल उम्मत कहते हो, जवाब है ना अपने आला हज़रत को, मतलब कहीं के अपने आला हज़रत को जलील होता देख, और आला हज़रत दलील नहीं, आला हज़रत ने दुश्मनाने रसूलुल्लाह को जलील और उनकी हकीकत को दुनिया के सामने आया कर दिया। तू आला हज़रत को क्या बोलेगा? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपनी बोल रहे हो। मैंने देखा तुमने बुजुर्गों के, तुमने इतने आलिमों से बात की है, तुमने किसी भी आलिम से ठीक तरीके से बात नहीं की है। अभी तुम इसको रिकॉर्डिंग करके डालोगे, हम भी डालते हैं बेटा अपने चैनल पे, परेशान ना हो। तुम्हारे देवबंदियों की तो वैसी की तैसी कर दूंगा मैं, परेशान मत हो। अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम अगर तुम हिजड़े नहीं हो, नामर्द नहीं हो ना, और एक बाप की ओरिजिनल औलाद हो, तो सामने से बैठ करके बात तो कर लो। ये फोन पर हिजड़ागिरी मत करो। अपनी गालियां देकर जो है मुनाजरा जीत सकते हो, सर से बला टालने की कोशिश कर सकते हो। गालियां नहीं, ये फोन पर हिजड़ागिरी जो कर रहे हो, उठा के रिकॉर्डिंग क्लिप डाल रहे हो, ये हिजड़ागिरी मत करो। तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, और अपने आप को सैयद भी लिखना बंद कर दे, जाहिल मुतलक। सुन, जो अकीदा हो जाता है वो उसका नज़र कट जाता है, जब तुम्हारा आला हज़रत अज़ाब में है, तुम उसको नहीं बचा रहे हो, थानवी की बात कर मुझसे, थानवी की बात कर, लेटरिंग में पैदा होने वाला, थाना भवन में पैदा होने वाला, लेटरिंग करते करते मरने वाला, उसकी बात कर। रशीद अहमद गंगोही मरदूद की बात कर, जो बिस्किट बेच रहा है, दुकान लगा करके फतावा रशीदिया में चटनी बेच रहा है, इमली बनाने का तरीका बता रहा है फतावा रशीदिया में, उसकी बात कर। फतावा रशीदिया में क्या लिखा है? उसने कुछ लिखा है क्या? कुछ सिर्फ मुतालबा किया कि भाई जो तुम्हारे अहमद रजा खान मुतालबा किया है, तो मैंने बात की तावीर ही नहीं। अगर तू एक बाप की औलाद है, सुन मेरी बात, अब्दुर्रहमान हो, थाना भवन के नाजायज पिल्ले, मेरी बात तो सुन ले, नाजायज पिल्ले, थाना भवन की
बजाय सुन ले, देवबंदियत वहाबियत का जनाजा उठा रहा है तू। में जाके भीख मांग रहा है कि पहले बात तो सुन ले, थाना भवन की नाजायज औलाद, मेरी बात तो सुन ले, थाना भवन की नाजायज औलाद। अगर तू एक बाप की औलाद है ना, तो सामने बैठ करके तू हमसे डिबेट कर ले, सामने बैठ कर, तेरी औकात में तेरी मैयत हो जाएगी, तेरी पूरी देवबंदियत का जनाजा उठ जाएगा। 5 मिनट के अंदर जनाजा उठेगा, इल्मी मेयार दिख जाएगा सामने, कौन कितने पावर में, कितने। अरे भाई फोन क्यों काट रहे हो? पागल होने की क्या बात है, फोन क्यों काट रहे हो? इबारत सुनते ही पागल हो गया। औकात नहीं है बात करने की। फतवा दिखा दे भाई, फतवा दिखा दे, फतवा दिखा दे, कहाँ है फतवा? फतवा दिखा दिया तो क्या करेगा बता? फतवा दिखा दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, को काफिर कहेगा? बिल्कुल बिल्कुल कहेगा काफिर? बिल्कुल। पहले तू वादा कर कि रशीद अहमद गंगोही को पूरी देवबंदी जमात के अकाबरीन हराम खोरों को तू काफिर कहेगा? मेरा दावा तुमने सुना नहीं है यूट्यूब पे? दावा मत कर, तेरे जैसे दावे खोखले तू यूट्यूब पर अभी बोल रहा था कि दावा कर, अभी बोल रहा है दावा मत कर। सुन मेरी बात तो सुन ले, पहले बात सुन। खबासत की तरह हंस मत, खबीसों की तरह, मेरी बात पहले सुन ले। खबीस तो तुम्हारा आला हजरत था। खबीस? अरे खबीसुन नस्ल जो है तुम्हारा बाप दादा और रशीद अहमद गंगोही मरदूद, ये सारे लोग हैं, समझे कि नहीं? मेरे ख्याल से तुम्हारी औकात तुम्हारी औकात नहीं है। प्रोफेसर मसूद ने सही लिखा है कि आला हजरत जो है वो जाहिलों का पेशवा था। तो जब जाहिलों का पेशवा उतना बड़ा जाहिल था तो तुम क्या भरवा था? दारुल देवबंद में रहने वाले जितने हैं वो सब तवाइफों के अड्डों की दलाली करने वाले लोग हैं। तेरी ऑडियो में डालता हूँ इंशाल्लाह, अपनी जिल्लत कोई मसला नहीं है, डालना। मैं तो चाहता हूँ, मैंने इसीलिए कहा है कि तू डाल। हाँ चल। मैंने इसीलिए किया। और तू एक बात क्यों देना, तो पूरी ऑडियो डालना, ताकि तुम्हें औलादों को इतना बरेली के बांस से ठोका है, इतनी ठोकाई करती है कि आज तक वो कायदे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, हकला रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है उनको। बिस्किट बेच रहे हैं, बतावा रशीदिया में टालमोट बेच रहे हैं, नमकीन बेच रहे हैं, यही सब बेचो तुम लोग, और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। आला हज़रत के सामने उनके पैरों की जूतियों की, इसकी बुनियाद पर तुम्हारा ये गाली देना चाहिए। तुम्हारे अकाबरीन, ये थाना भवन, ये अचरपरी थानी और ये गंगोही और ये जितने भी तुम्हारे, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने जो जलजला पैदा किया है बरेलवियत के अंदर, तो इस बिना पर तुम्हारा गाली देना जायज है। अच्छा, ये जलजला नहीं है, ये नामर्दनगी है, ये हिजरागिरी है। जलजला पैदा किया है, तुम्हारे उलमा की रातों की नींदें हराम कर दी मैंने। तुमने मेरी अकल पे मातम करेंगे यतीमुल अक्ल पूरे था। अगर तू वाकई हमसे बात करने का शौक रखता था तो सही से बात करना चाहिए। तू फजूल की बातें कर रहा है भाई। मैंने कहा था कि भाई ये फालतू बात नहीं, मुझे बस फालतू की बातें नहीं। तुमको फतवा अपने, अगर तुमको फतवा चाहिए, अपना ईमान सुनिए, तलाश करने के गया, थाना भवन अपना ईमान तलाश करने के लिए गया। सुनिए, तो जाहिर सी बात है तेरे तू चाहे देवबंद में अपना ईमान तलाश कर, चाहे थाना भवन में ईमान तलाश कर, या हथौड़ा में या देवबंद में कहीं भी तलाश कर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और पहली चीज, अपने नाम के आगे से सैयद अब्दुर्रहमान हटा, सैयद अब्दुर्रहमान हटा, पहले सैयद लगाना बंद कर, इसलिए कि सैयद वो होता नहीं है जो बदअकीदा होता है, उसका नसब कट जाता है, मुनक़ते हो जाता है। जाहिल पहले जाकर पढ़ ले, उसके बाद गुफ्तगू करा कर किसी से, ठीक है? अरे तू कहाँ से सैयद, तू कहिए अपने आला हजरत का सच्चा होना साबित कर दे भाई। अरे आला हजरत का सच्चा होना साबित करने की जरूरत क्या है? आला हजरत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, आला हजरत पूरी दुनिया में सच्चे साबित हुए हैं। हत्ता कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने तुम्हारे अकाबिरों को ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं उनकी, और उनकी किस्बयानी पर ऐसी लानत की है, ऐसी धज्जियां उड़ाई, ऐसी लानत मलामत की है कि आज तक तुम लोग जो पनप नहीं पा रहे हो। देवबंद में सिमट के रह जाओ बस, और अपने मुंह मियां मिट्टू बन करके गाते रहो। आला हजरत की जितनी किताबें हैं ना, उन किताबों के नाम अभी ठीक से तुम्हारे मौलवियों को याद नहीं होगा, और पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इधर आइए थोड़ा, ठीक है? मुफ्ती है, ये बदतमीजी कर रहा है, इसको बात कीजिए आप। ये ले बात करो। अरे बदतमीजी, मैंने उसको हवाले का मुतालबा किया है, तो जो है बदतमीजी कर रहा है। हाँ बस वाकई करेंगे ना, क्योंकि इनकी आला हजरत की जो मैंने धज्जियां उड़ाई है अजीब दे रहे हो इधर उधर बात करके।
ये जो तुमने एडिटिंग शुदा किताबें भेजी है ना, अगर एक बाप की औलाद हो तो तुम मुझको ओरिजिनल नुस्खा भेजो, फिर तुमको मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? एक बात बताओ, ओरिजिनल सुनो ओरिजिनल नुस्खा भेजो। सुनो, कर्नाटका और बेंगलोर में जो बैठ करके ड्रामा कर रहे हो, ये ड्रामेबाजी का जो अड्डा तुमने यूट्यूब पे खोल रखा, आता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी औकात ही नहीं है। पूरा देवबंदियों का सुनो पूरा देवबंदियों का मदरसा मेरे घर के सामने, उनकी औकात तो है नहीं, बोल पाए हैं। तुम क्या होगे, बात करोगे वाले हो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टांडा अम्बेडकर नगर में मेरा घर है, मोहल्ला कस्बा छोटी बाजार। मेरा मोबाइल नंबर है 9369511855। सुनो अरे जाहिले मुतलक, टांडा अम्बेडकर नगर जिला है, टांडा कस्बा है, बताया तो समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा है? अहमद रजा है? स्टेट कौन सा है बे? फिर बेते कर रहा है जाहिले मुतलक। तेरी अम्मा ने किसी थाना भवन वाले से जाकर के जो है ज़िना कराया था, तभी तू पैदा हुआ क्या? बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी क्यों कर रहा है? बदतमीजी, अबे बेते क्यों कर रहा है? बेते क्यों कर रहा है? बेते क्यों कर रहा है? बरेली के बांस की ठोकाई समझ बर्दाश्त नहीं हो रही है? बरेली की ठुकाई बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या अब्दुल रहमान? बरेलवी ऐसी ठुकाई करते हैं ना कि तुम लोग तिलमिला जाते हो। ठुकाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेते करने लगा, ठीक है? अपने सुन तूने जो किताबें भेजी हैं, सुन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी, सुन मेरी बात सुन, दूसरी बार बोल। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोला तुमने? पूरी बात बता रहा हूँ, सुन तो ले। कान में तेरे बवासीर हो गया है क्या? पहले बात तो सुन ले मेरी। तेरी तकरीर सुनने थोड़ी ना फोन। अरे पहले बात तो सुन। अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी, अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी, अल्लामा मुफ्तीउर रहमान साहब, अल्लामा शहजाद आलम मिसबाही, इन लोगों को जरूरत नहीं तेरे जवाब की। तेरा जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुम रजा हक्कानी ही देने के लिए काफी है। अगर तू एक बाप की औलाद है तो सुन अंजुम रजा हक्कानी के सामने पूरा देवबंद हक मारा है अभी तक। पूरा देवबंद पूरा थाना भवन हक मारा है। और देख तेरे बाप की औकात नहीं, देख तू आनाकानी कर रहा है, भाग रहा है। ओरिजिनल नुस्खा भेज, अगर तू अपने बाप की जायज औलाद है, अगर तू थाना भवन की तवायफों की अड्डों से पैदा नहीं हुआ है तो ओरिजिनल नुस्खा भेज। ओरिजिनल नुस्खा भेज किताबों का। ये एडिटिंग अबे तू ओरिजिनल तो है ही नहीं है तो कहाँ से भेजेगा? एडिटिंग शुदा भेज रहा है। ओरिजिनल भेज, तुझको ओरिजिनल में देता हूँ फतवा, ओरिजिनल फतवा देता हूँ। बरेलियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे सबूत, सारे प्रूफ, सारे जवाब होते हैं। थाना भवन की नाजायज औलादो, टांग उठा करके भागोगे। तुम्हारा थानवी, तुम्हारा गंगोई, तुम्हारा नानोतवी, उसके बाप की औकात नहीं तुम्हें बचा मिलता। तुम्हें बचा नहीं सकते वो लोग, सुन लो, तुम्हें बचा नहीं सकते। और सुन लो, कायदा सुन लो, अर्रज़ा बिल कुफ्र कुफ्रुन, काफिर की तायीद करना भी कुफ्र है। सुन, काफिर की तायीद करना भी कुफ्र है। तू काफिर है और काफिरों की तायीद कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि तू कुफ्र में पैदा ही हुआ है, तो जाहिर सी बात है तायीद की जरूरत ही नहीं है। अगर तू अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो ओरिजिनल नुस्खा भेज, ओरिजिनल किताब का नुस्खा भेज और ओरिजिनल फतवा इंशाअल्लाह फकीर कादरी अंजुम रजा हक्कानी तुझे हुसामुल हरमैन पर जो तूने मुतालबा किया है वो देगा। और अगर तू ओरिजिनल नुस्खा नहीं भेजा तो तू एक बाप की जायज औलाद नहीं है। थाना भवन की हजारों देवबंदी और इबलीसों का नुतफा है तू। मरदूद इकट्ठा हुआ है जो, और इकट्ठा होने के बाद अब्दुल रहमान बना है। मरदूद की औलाद थाना भवन की नाजायज औलाद है, तू वाकई है तो भेज। जाहिले मुतलक तू, तेरी औकात नहीं है। तू इतने बड़े बड़े उलमा से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तू ओरिजिनल नुस्खा भेज ना बे, जाहिल कहीं का। ओरिजिनल नुस्खा भेज, फिर देख मैं तेरी कैसी ठुकाई करता हूँ। ओरिजिनल नुस्खा तेरे पास है ही नहीं, डुप्लीकेट हुसामुल हरमैन पर बात कर रहा है, डुप्लीकेट एडिटिंग करके भेज रहा है। दूसरी चीज ये है कि फतवा रशीदिया की ओरिजिनल नुस्खे जो तेरे पास हैं, जो तुम लोगों ने एडिटिंग की है देवभंग में, थाना भवन की नाजायज देवभंगी औलाद। सुन ले हम भंगियों, कान खोल करके सुनो। अगर तुमने नहीं हो रहा हूँ मैं, तो तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो रहे हो, तुम जवाब नहीं दे पा रहे। जब तुम बोल रहे हो कि तहरीर में जवाब दो तो फोन कर क्यों रहे हो? तो तुम जवाब हो, तुम जवाब ही कहाँ दे रहे हो? तुमने तहरीर लिखी उसमें? सुनो, तुमने उसमें तहरीर लिखी?
तुमको मैंने, तुम ओरिजिनल नुस्खा मांग रहे थे ना, ओरिजिनल फतवा मांग रहे थे ना, मैंने तुमको तुमने भेजा ना। तहरीर लिखी, मैंने कहा मांगा ओरिजिनल नुस्खा, तुमको मैंने कहा तुम्हारे मांगा, गंगोली का ओरिजिनल फतवा मैंने भेजा कहा ना। मांगा, मैंने हैं? कहा मांगा। तुम तो मांग रहे थे कि वो अबे वो गधे के इबारत बच्चे, दिखाओ तू जो मांग रहा था। किस्ब की बात कर रहे थे कि तुम अच्छा, लोगों से वुकूए सच किस्ब बात का की फतवा है तुम्हारे पास? है। तुमने ये कहा ना कि वुकूए वो, किस्ब का फतवा है? एक मिनट, जिस पर आला हजरत का ये फतवा है, जिस पर आला हजरत ने तहरीर फरमाया है, वो फतवा तुम मांग रहे थे कि दिखा दो कहाँ लिखा रशीद हाँ, अहमद कहाँ गंगोही है ने। बताओ, तो रशीद जो अहमद अभी भी गंगोही की देखो। किताब की फोटो तो मैंने भेज दी है। किताब की फोटो नहीं, हमें फतवा चाहिए। अरे किताब अच्छा, कौन सी किताब है वो? तुम्हारी किताब में छपी हुई है सारी अच्छा, चीजें मेरी किताब, तुम्हारी। कौन सी किताब, नाम बताओ। है रशीद किताब फतावा का नाम रशीदी, क्या? फतावा रशीदिया की फोटो भेजा है मैंने बाबू तुमको। अब्दुल अच्छा, रहमान इसमें ये पढ़ लो। लिखा है, अब्दुल, इसमें ये लिखा है हाँ, कि बिल फेल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ सुनो, अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र वाला इताक गुमराही दरकिनार फासिकली न कहो। बीआई नहीं यही जुमला लिखा है, किसने लिखा है ये? फतावा रशीदिया जो तुमने लिखा है। तुमने सवाल किस बात पर किया है? तुम्हारे आला हजरत ने लिखा आला है हजरत ने कि क्या मैंने लिखा है? अपनी आंखों से आला देखा, क्या लिखा है? वही बोल रहा हूँ, मैंने अपनी क्या आंखों लिखा? से जरा फिर देखा से बोलो जरा। गंगोही, मैंने अपनी आंख से देखा जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल फेल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला इताक गुमराही दरकिनार फासिक भी ना कहो। तो ये बेआईन ही जुमला फतावा रशीदिया में है, और ये फतवा है। सुनो, फतावा रशीदिया को जो पुराना एडिशन मैंने भेजा, तो उसमें नया है, एडिशन में तुम्हें सुन तो लो पहले, फिर तुम सुनते पुराना, नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम पुराना एडिशन भेजे हो क्या? उसमें ये फतवा है? तुम, हमारे पास पूरी किताब रखी हुई है पुराने एडिशन वाली, उस किताब से मैं तुमको भेज रहा हूँ सारी चीजें। मैंने, मेरे पास इतने जखायर है ना, इतने दलाइल है। तुम दलाल की बात कर रहे थे ना, कुलहातु बुरहानुकुम की बात कर रहे थे ना, मैं इतनी दलीलें दूंगा ना, तकरीरें नहीं चाहिए मुझे, फतवा चाहिए, फतवा मैं इतनी दिखाओ। दलील और इतने प्रूफ दे दूंगा कि पट के मर जाओगे, कब्र में दब जाओगे उसी में, दलीलों में खाली। ये फालतू गिरी तुम अपने मसलक में रखो और अपने मसलक में बयान फतावा करो। रशीदिया की ओरिजिनल कॉपी मैंने दी है और ओरिजिनल बुक रखी हुई है अम्मा को दे जाके। तुम्हारी मौलवी। हेलो हेलो, हाँ अब्दुल रहमान साहब, कौन बोल रहे? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा बाप अंजुम रजा हक्कानी बोल रहा हूँ। फोन काट के भाग क्यों जा रहे हो? हेलो, क्या हुआ, फोन नहीं उठाया जा रहा है क्या? ये तुम्हारे बरकाती अशरफी मौलाना बरकाती मियाँ से बात करो, ये लो। अशरफी और बरकाती से नहीं, अब्दुल रहमान तू बात कर। हेलो, अब्दुल रहमान से बात करो, अब्दुल रहमान से। सुनो, और ये मैंने हाँ। फतावा रशीदिया भेजी, सुनो मेरी बात सुनो, ज्यादा बात नहीं। हाँ बोलो। फतावा रशीदिया जो मैंने भेजी है, मेरे पास हाँ। पुराना एडिशन रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पुराना, इतना पुराना है ना कि अच्छे अच्छे देवबंदियों के छक्के छूट जाएंगे। छठी का दूध नानी पता नहीं कहाँ से याद करा पाएंगी कि भी नहीं करा पाएंगी। फतावा रशीदिया में जो उसने जो कह रहा था कि मेरा झूठ साबित करो, जो रशीद अहमद गंगोही के ऊपर जो लगाया है वो फतवा दो, तो वो पुराना एडिशन मेरे पास रखा हुआ है, अभी भी आज भी रखा हुआ है, जिसमें सुनो, बदतमीजी क्या होगा? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अब आगे बदतमीजी नहीं, अपनी औकात पर आ गए। वो सब लेकर क्या जूझ दिलाओगे? थाना भवन की नाजायज, अरे देवबंदी लोग यही करते हैं। अरे अब ये सामने आ गई, मैं रिकॉर्डिंग करके इसे चैनल पे डाल रहा हूँ। अरे चैनल मैं पर क्या डाल रहा माँ हूँ। का दल्ले सुन मेरी बात, थाना भवन की चुप नाजायज माँ का औलाद, अरे भंगी है और देवभंगी, सुन मेरी बेवफा है बात, रे। सुन गाली दे रहा है ना, देवभंगी की औलाद सुन। अब्दुल रहमान की तो औकात नहीं है, पैखाना तू छूट गया, बेवफा है। मरदूत का पैखाना छूट गया, उसका पैखाना छूट गया, जवाब नहीं दे पाया। तू बेवकूफ है। सुन, मैंने वो फतवा भेज दिया, अगर एक बात की औलाद है, मैंने वो फतवा भेज दिया, जो फतवा अब्दुल रहमान मांग रहा था, मैंने वो फतवा भेज दिया। अगर तू एक बाप की औलाद है तो अब जवाब दे रशीद अहमद गंगोही के कुफरिया इबारत पर। अगर तू एक बाप की औलाद है तो दे जवाब।